امریکی جنگی جہاز ابنائے ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل، بحری آمد و رفت بحال کرنے کا مشن شروع۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ابنائے ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں وہ اس اہم آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے نئے مشن کا حصہ ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت ابنائے ہرمز عبور کرنے کے بعد اس وقت خلیج عرب میں آپریشن کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی افواج تجارتی جہاز رانی کی بحالی کے لیے فعال طور پر کوششوں میں معاونت کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پیر سے ابنائے ہرمز میں پھنسے تجارتی جہازوں کو نکالنے کے لیے عملی اقدامات شروع کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کو ابنائے ہرمز سے نکالنے کے مشن کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا تھا۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز میں موجود کئی جہازوں میں خوراک اور ضروری اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث عملے کی صحت اور حفاظت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر اس مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنا سفر روک دیا ہے۔ امریکی جہاز پہ اسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے، جبکہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈر نے ایرانی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں کسی امریکی جنگی جہاز پر میزائل نہیں لگا۔ پاسداران انقلاب گارڈز کی بحریہ نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول ابنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں ابنائے ہرمز کے جنوب میں ایرانی کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے درمیان ایک خط واضح کیا گیا۔ اس سے قبل ایرانی فوج نے تمام تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ امریکی جہازوں کو ابنائے ہرمز کے قریب نہ آنے کی وارننگ بھی دی گئی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سینئر کمانڈر نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہیں، امریکی بحریہ ابنائے ہرمز کے قریب بھی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی حصے میں ہر طرح کے خطرے کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ اعلان پر انتہائی سخت اور واضح لہجے میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت کو براہ راست جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ عزیزی نے کہا کہ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کا انتظام ٹرمپ کے فریب بھرے بیانات اور سوشل میڈیا پوسٹ سے نہیں چلے گا۔ یہاں بیان بازی اور ڈرامہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے چند گھنٹے قبل سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں اعلان کیا تھا کہ آج مشرق وسطی کے وقت کے مطابق صبح سے امریکی فوج پروجیکٹ فریڈم شروع کر رہی ہے اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے تاکہ اس آپریشن کے تحت غیر جانبدار ممالک کے تجارتی اور تیل کے جہازوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کرنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں WTI کروڈ آئل کی قیمت $101.40 جبکہ برینٹ کروڈ آئل $107.70 فی بیرل کا ہو گیا۔ رائٹرز کے مطابق تیل کی قیمتوں میں پیر کے روز کمی دیکھی گئی ہے، تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی عدم موجودگی کے باعث قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر برقرار رہی۔ برینٹ کروڈ فیوچرز 64 سینٹ یا 0.59% کمی کے بعد $107.53 فی بیرل پر آئے۔ دوسری جانب اوپیک پلس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جون میں 7 رکن ممالک کے لیے یومیہ 1,88,000 بیرل تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے گا، جو مسلسل تیسرا ماہانہ اضافہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ضبط شدہ ایرانی جہاز MV توسکا کا 22 رکنی عملہ پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ شب ہوائی جہاز کے ذریعے ایرانی جہاز کے عملے کو پاکستان لایا گیا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اس کے اصل مالکان کو واپس دیا جائے گا۔ یہ اقدامات ایران اور امریکہ کے تعاون سے باہمی رابطے کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان اس طرح کے اعتماد سازی کے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کہا گیا کہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے جاری ثالثی کوششوں کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں سہولت کاری جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے ایرانی کنٹینر جہاز MV توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو گزشتہ رات پرواز کے ذریعے پاکستان لایا گیا، جہاں سے انہیں آج باضابطہ طور پر ایرانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اس کے اصل مالکان کو
वापस करने के लिए पाकिस्तानी समुद्री हदूद में वापस लाया जा रहा है। ये इकदामात ईरानी और अमरीकी हुक्काम की हिमायत से किए जा रहे हैं। ये अमल एतमाद साजी का एक अहम इकदाम है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के लिए तहसीन का इजहार करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए बातचीत, सिफारतकारी और सालसी में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका को दिए गए 14 निकात में 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी की मीडिया रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अल जजीरा की रिपोर्ट समेत उन हालिया दीगर रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया कि 14 निकात में ईरान ने 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज दी है। मजीद बताया गया कि अमरीका और ईरान की जानिब से मुश्तरका तौर पर अपने हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए काम करने की तजवीज भी नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि जहां तक फैसलों का मामला है तो वो मुनासिब वक्त पर किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जौहरी मामला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने ईरान के 14 निकात का जवाब पाकिस्तान के जरिए पहुंचा दिया है और हम इसका जायजा ले रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अहम हफ्ता शुरू, सिफारती राह हमवार हो रही है। सिर्फ अपने हुर्मुज पर तातुल सिफारतकारी को मुश्किल बना रहा था। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर मुसलसल बयानात और इंटरव्यूज ने भी मामले को मजीद पेचीदा कर दिया था। ईरानी हुक्काम ने अब वाज़ेह कर दिया है कि अगर सिफारतकारी को कोई मौका मिलना है तो ट्रंप को खामोश रहने की जरूरत है। ट्रंप के नुक्ते नजर में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आई है। फरीकैन के दरमियान पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अमरीका ने इब्तदाई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और फिलहाल एक नजर सानी शुदा मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। अगरचे ट्रंप ने बयान देना बंद नहीं किया है, लेकिन इनका लहजा और अंदाज पहले से कहीं ज्यादा नरम है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये तब्दीली जाहिर करती है कि इख्तलाफात के बावजूद बैक चैनल डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से नार्वे के नायब वज़ीर खारजा आंद्रियास मोट्स फ्लीट क्राविक ने वज़ारत खारजा में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में फ्रीकैन ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान की जानिब से रवाबत और मुकालमे को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर जोर दिया। नार्वे के नायब वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और तनाज़ात के पुरअमन और देरपा हल के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। नार्वे के वजीर खारजा की जानिब से इसहाक डार को आइंदा माह होने वाले ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत भी दी गई। फ्रीकैन ने दो तरफा उमूर, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की से मुतल्लिक मामलात पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। 1 year ago, Pakistan stood at the edge of uncertainty. The drums of conflict echoed across our borders. The air was thick with fear, speculation, and the designs of those who believed Pakistan could be bent, Pakistan could be broken, or Pakistan could be bullied. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। बिलावल भुट्टो का कहना था, पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। मार्का हक में कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़म का मुजाहिरा किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में तनाज़ात खत्म करने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की मीडिया ने मार्का हक के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हम अमन पसंद हैं, जंग नहीं चाहते। 10 मई को मुल्क भर में मार्का हक मनाएंगे। भारत ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी। भारत को पता चल गया कि इसकी हैसियत क्या है। मुराद अली शाह ने कहा, भारत के 2 राफेल समेत कई जहाज गिराए। भारत को चंद ही घंटों में पता चल गया कि पाकिस्तान से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाक फौज के सामने भारत पूरी तरह पछता हुआ। वो समझा पाकिस्तान कमजोर और दुनिया से कट चुका है। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडा किया और कहा, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। अमेरिका ईरान की लीडरशिप को इकट्ठे बैठाना भी किसी मार्के से कम नहीं। पाकिस्तान दुनिया में अमन लाने के लिए किरदार अदा करेगा। अजीम कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जिनका विजन था, जिनकी कोशिश थी, जिनकी वो सोच थी कि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया, जिससे आज
पूरी दुनिया में कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर मैली आंख से नजर नहीं डाल सकता। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। शर्जील मेमन का कहना था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। दुश्मन पाकिस्तान मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। धमकियों के बावजूद बिलाल भुट्टो भारत गए। भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया। बोले, हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाएंगे। खुदा की जो कुर्बानी है वही कौमों की इज्जत और कौमों के हमेशा जो है वो जिंदा रहने और मुल्कों के कायम रहने का जो है वो बायस बनती है। शोहदा हमारा फख्र कौम के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी को खिराज अकीदत पेश। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 को दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। राना सनाउल्लाह ने शहीद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके सब्र और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां कौमों की इज्जत और बका की जमानत होती है। मार्का हक ने पाकिस्तान को इज्जत, वकार और तारीखी कामयाबी दिलाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की सिफारिश पर PIA कारपोरेशन ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। PIA कारपोरेशन ऑर्डिनेंस PIA की चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने से मुतालिक है। इन असासों में कराची में PIA प्लेनेटेरियम, गुलशन इकबाल की अराजी, लाहौर में PIA प्लेनेटेरियम, ओल्ड यूनिवर्सिटी ग्राउंड की अराजी शामिल है। पिशावर में हयाताबाद फेज 2 में वाक़ PIA प्लेनेटेरियम की अराजी, KDA स्कीम 1 का फुटबॉल ग्राउंड, एम्प्रेस रोड लाहौर में दयाल सिंह मेंशन का दफ्तर, कश्मीर रोड कराची पर वाक़ जहांगीर खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अराजी भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में हिदायत की कि मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें, किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में इजहार ख्याल किया कि जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। गलियों में सीवरेज वर्क, रफ टाइल, खूबसूरत कलर टाइल नस्ब की गयी। पंजाब में आई बारिश का दौर खत्म हो गया। इख्तियारात दिए हैं तो जवाबदेही जरूर होगी। मरियम नवाज का कहना है कि हर जिला अपना कंसल्टेंट हायर करे, पंजाब डेवलपमेंट प्लान में मौजूद हर खामी दूर की जाए, अफसरान फील्ड में नजर आए, हिदायत पर मनोअन अमल करें, किसी को ला इल्मी का उज़्र पेश करने की इजाजत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से सऊदी सफारत खाने में मुलाकात की, जिसमें किंग सलमान अस्पताल के अहम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि किंग सलमान अस्पताल का क़याम दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात की मजबूत अलामत होगा। यह मनसूबा पाकिस्तानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सऊदी अरब के अज़्म का मजहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मनसूबे की पेशरफ्त का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं, जो इसकी अहमियत को वाज़ेह करता है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हमायत के अज़्म पर इत्तफाक किया। सऊदी क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का अदा किया गया। Most vulnerable country on the world which is subjected to climate change and these disastrous anomalies, and for the last 1 year, since January 2025, we unfortunately became the 14th most water scarce nation in the country globally. इसका लिंकेज हमारी पॉपुलेशन के साथ भी है, हमारे वाटर की मैनेजमेंट के साथ भी है, और नॉट बीइंग एबल टू रीसाइक्लिंग, वो तमाम फिनोमेना इसमें शामिल हैं। ये जो पिक्चर्स के राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोमेट हैजर्ड्स, जिसमें फ्लड, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये चीजें शामिल हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक्स और बाकी इंड्यूस्ड हैजर्ड, जो इन तमाम डिजास्टर्स के आने के बाद कई महीनों तक हमारे मुल्क में कंटिन्यू होते हैं। तमाम का इम्पैक्ट कैलकुलेट करें तो क्लोज टू $4.5 billion is the annual loss to the economy. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स में साल 2026 के दौरान मुमकिन कुदरती आफात, कौमी तैयारी, खतरात की बरवक्त तशखीस और इनके मुअस्सर तदारुक के इकदाम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी गई। NDA में हुकाम की जानिब से कौमी सतह पर आफात से निमटने के लाहा अमल, पेशगी इकदाम और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन के तरीकाकार से आगाह किया गया। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई, जो हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन NDA में
लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलक ने बताया कि इब्तदाई जायजों के मुताबिक रवां साल हीट वेव, जंगलात में आतिशज़दगी और मानसून बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के खतरात में इजाफा हो रहा है, जो निचले इलाकों में सैलाब के खदशात को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाजों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों से 17 हज परवाजों के जरिए 4317 आज़मीन रवाना होंगे। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 126 परवाजों के जरिए 32,454 सरकारी आज़मीन और 4,889 प्राइवेट आज़मीन हज सऊदी अरब जा चुके। पाकिस्तान हज मिशन के शोबा गुमशुदगी व बाजियाबी ने 6 आज़मीन हज, 37 व्हील चेयर्स और 3,700 बैग्स मंजिल तक पहुंचाए। तिब्बी सहूलियात फराहमी भी जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पेशावर जलमी और हैदराबाद किंग्समैन के 3, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-2, जबकि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 1-1 खिलाड़ी शामिल किया गया है। टीम का इंतखाब मारूफ कमेंट्री पैनल के 5 रुकनी ज्यूरी ने किया। फातेह टीम के कप्तान बाबर आजम को PSL टीम का भी कप्तान मुकर्रर किया गया है। पेशावर जलमी के कोशाल मेंडेस और सुफियान मुकीम, हैदराबाद किंग्समैन के उस्मान खान, हसन खान और इमर्जिंग प्लेयर हुनैन शाह को टीम में शामिल किया गया है। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी, मुल्तान सुल्तान के शान मसूद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। रिचर्ड ग्लेसन को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज को 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में मुंतखब किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ दायर हद के इज्जत दावे में अहम पेशरफ। अदालत ने मीशा शफी की अपील पर सेशन कोर्ट के 50 लाख रुपए हर्जाने के फैसले को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मीशा शफी की अपील पर समाअत करते हुए करार दिया कि अपील के हतमी फैसले तक जुर्माने की रकम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगी। तहाँ मीशा शफी को जुर्माने की निस्फ रकम अदालत में जमा करवाना होगी, जबकि बाकी रकम के लिए श्योरिटी फराहम करना लाजमी होगी। समाअत के दौरान अदालत ने मीशा शफी की जानिब से मुकम्मल ट्रायल कोर्ट फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अदालत की जानिब से दोबारा जिनसी हरासानी के इल्जामात आयद करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली पाकिस्तानी घरेलू अदाकारा निम्रा खान ने मद्दाहों को अपनी दूसरी शादी की खुशखबरी सुना दी। एफल टावर के सामने शादी पर ली गई तस्वीर में निम्रा खान ने गुलाबी रंग का लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जबकि उनके शरीक हयात ग्रे सूट में मलबूस थे। अदाकारा ने अपने शौहर की शनाख्त जाहिर नहीं की। तस्वीर में चेहरा भी छिपा रखा है। निम्रा खान ने अपनी तस्वीर के साथ एक जज्बाती पैगाम लिखा। ये कहानी अल्लाह ने बहुत पहले लिख दी थी, आज इसका आगाज है। रियो डी जनेरो के साहिल पर 14वीं के चांद की रोशनी में गुलकारा शकीरा की सहर अंगेज आवाज का जादू। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा का कॉन्सर्ट सजा तो गोया उनके चाहने वालों का समंदर उमड़ आया। शायकीन मौसीकी का दावा है कि कॉन्सर्ट में 20 लाख अफराद ने शिरकत की। लातीनी मौसीकी की मलका ने जहां लाखों दिलों को अपनी सहर अंगेज आवाज से जीत लिया।